Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and listeners. In today's video, we are going to learn about China-Pakistan Economic Corridor. What is this economic corridor and why this economic corridor was initiated by Chinese leadership? What is its present status? And this economic corridor would be completed under how many phases? What are its routes and which type of benefits are supposed to be achieved to Pakistan? All these questions we are going to address. So let's start. Firstly, I am going to explain a brief introduction of CPEC, China Pakistan Economic Corridor. CPEC is one among the projects of Belt Road Initiative, or which is commonly known as One Belt, One Road Initiative. This One Belt, One Road Initiative is not a one continent restricted program, rather, it is a transcontinental long term project. It is a long term policy and investment program whose aim is to develop infrastructure and to accelerate economic integration of the countries of various continents through historic Silk Road. This initiative was introduced in 2013 by China's President Xi Jinping, and until 2016 it was generally known and became famous with the name One Belt One Road Initiative. On March 28, 2015, People's Republic of China, shortly it is known as PRC, issued official outline related to BRI. एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू किया जो कि एक इंटेंडेड डिज़ाइन था, एक आउटलाइन थी, एक फॉर्मेट था, एक रोड मैप था कि जिस रोड मैप को फॉलो करते हुए BRI इनिशिएटिव को एकम्प्लिश किया जाएगा. So BRI is not a short term plan, it is not a short term investment, rather it is a long term investment program that is not stretched on one country or on one continent, on a single continent, बल्कि ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को, एशिया को, अफ्रीका को और यूरोप को कनेक्ट करने का प्लान है. और कैसे कनेक्ट करेगा? बाय यूजिंग टू टाइप्स ऑफ रूट्स, रोड बेस्ड रूट्स एंड मैरीटाइम रूट्स. 2013 में ये प्लान चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया और 2015 में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, लाइक नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, दे जॉइंटली introduced the official roadmap for the Belt and Road Initiative. What is the objective and what are the aims of this initiative? इस ह्यूज और मेगा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं? As I told you earlier that it is a global initiative, but by its nature of building on the historic Silk Road puts its major focus on countries in Asia, Eastern Africa, Eastern Europe and the Middle East. और ये जो रीजन्स हैं वो कंट्रीज़ जो इन रीजन्स में हैं दे आर नोन एज एमर्जिंग मार्केट्स. अगर हम बात करें कि दुनिया के कितने ममालिक इस
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, कितने ममालिक इसका पार्ट हैं? अ, तो दे आर 71 हु आर टेकिंग पार्ट इन दिस इनिशिएटिव। और अगर हम इन 71 कंट्रीज़ की बात करें तो टुगेदर दीज 71 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी एंड टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और इन फिगर्स से यू कैन इमेजिन कि ये जो BRI प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ वेरी जाइंट प्रोजेक्ट, इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। This Belt and Road Initiative combines two initiatives. One is land based Silk Road Economic Belt that is comprised of 6 development corridors. उन्हीं 6 development corridors में से एक कॉरिडोर का नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। बाकी 5 कॉरिडोर्स कौन से हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो एक जो वे है वो है लैंड बेस्ड सिल्क रोड यानी ज़मीनी रास्ता, और दूसरा वे कौन सा होगा? 21st सेंचुरी मैरी टाइम सिल्क रोड यानी समुद्री रास्ते को इस्तेमाल किया जाएगा। ज़मीनी रास्ते को भी और समुद्री रास्ते को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इन दो रास्तों के ज़रिए से इन 71 कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाएगा आपस में। तो दिस इज़ द एम ऑफ BRI। और ये इस कनेक्टिविटी का मकसद क्या है? इन 71 कंट्रीज़ को और इन 3 एशिया कॉन्टिनेंट्स को, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इक्तसादी तरक्की है, मुआशी तरक्की है, उसकी बढ़ोतरी, उसको बेहतर करना, और जो पॉवर्टी है उसको कम करना। अभी हमने बात की कि जो 6 कॉरिडोर्स हैं, 6 कॉरिडोर्स हैं BRI प्रोजेक्ट के। तो इन 6 कॉरिडोर्स के नेम क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप देखें कि इन 6 कॉरिडोर्स में जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो चाइना है। इट मीन्स कि चाइना अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को दुनिया के अदर कंट्रीज़ तक शॉर्ट टाइम में और विद द मिनिमम कास्ट डिलीवर करना चाहता है, और उसके लिए ये एक रोड और सी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया इन 2013। अब हम चूँकि इस वीडियो में फ़ोकस कर रहे हैं सी पैक पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, दैट इज़ वन अमंग द projects initiated under the flag of BRI. In 2015, April 2015, Chinese President Xi Jinping visited Pakistan, and on 20th April 2015, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, आपको पता है कि 2015 में PMLN वाज द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसकी उस वक़्त कास्ट, जो एक्सपेक्टेड कास्ट थी, दैट वाज $46 बिलियन। कि ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये जो प्रोजेक्ट साइन किया गया है, इसकी वर्थ कितनी होगी? $46 बिलियन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कास्ट, इसके जो इस सी पैक प्रोजेक्ट के अंडर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, उनकी कास्ट $62 बिलियन हो चुकी थी। बट एट दिस मोमेंट दिस कास्ट हैज़ बीन एक्सीडेड एंड नाउ सी पैक project is roughly you can say that its worth is about $100 billion or more than $100 billion। गोल क्या है सी पैक का? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इकोनॉमी बाय मॉडर्नाइजिंग इट्स रोड, रेल, एयर एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस सेंटेंस पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो दो चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, एंड सेकंड
to connect the deep sea Pakistani ports of Gwadar and Karachi to China's Xinjiang province and beyond by overland routes. जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ चाइना, शिनजियांग प्रोविंस, जिसका ज़्यादातर जो हिस्सा है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑन डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है. इट इज़ नॉट अ डेंसली पॉपुलेटेड टेरिटरी, अदर इट इज़ लेस पॉपुलेटेड टेरिटरी. तो ये जो प्रोविंस है इट इज़ अंडर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान चाइना. और इसके अंडर डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी पैदा हो रही थी, और इसके अलावा जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, दे वर कंपेल्ड टू launch different ethno-nationalist movements and separatist movements. So इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से, सी पैक के ज़रिए से, एक तरफ तो इस ऑटोनोमस टेरिटरी शिनजियांग की जो अंडर डेवलपमेंट है, जो यहाँ पे पॉवर्टी लेवल है, उसको ओवरकम करेगा चाइना. इसको बाकी जो रीजन्स हैं उनकी तरह ही एक डेवलप्ड रीजन बनाने में हेल्पफुल होगा ये प्रोजेक्ट. और साथ ही साथ जो कास्ट है चाइना की, जो चाइना को अपनी ट्रेड के लिए पे करनी पड़ती है. अभी मैं अगली स्लाइड्स में आपको जो एग्जिस्टिंग रूट है, ट्रेड रूट जो कि चाइना यूज़ कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और स्ट्रेट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी को यूज़ करते हुए, तो वो बहुत ही लॉन्ग रूट है जिसमें टाइम और कास्ट इन दोनों की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. सिर्फ ये नहीं है कि इस शिनजियांग प्रोविंस को ही कनेक्ट करना है सी पैक के ज़रिए से, बल्कि इसके अलावा जो अदर लैंड रूट्स हैं उनको भी कनेक्ट करना इसका पर्पस है. एज़ आई टोल्ड यू कि जो शिनजियांग प्रोविंस है, इट बॉर्डर्स विद मंगोलिया, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया. एंड द एंशियंट सिल्क रोड रैन थ्रू इट्स टेरिटरी. और अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि सिल्क रोड प्रोजेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं, कि जो हिस्टोरिकल सिल्क रोड था उसको रिवाइव किया जाएगा, उसको बहाल किया जाएगा और उसी रूट के ज़रिए से ट्रेड की जाएगी. तो ये जो रूट है ये कहाँ से गुज़रता है? ये चाइना की इस ऑटोनोमस टेरिटरी शिनजियांग से ही गुज़रता है. फ़ायदा क्या होगा चाइना को इसका, इस सी पैक प्रोजेक्ट का? दिस वुड रिड्यूस द टाइम एंड कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड एनर्जी सच एज नेचुरल गैस टू चाइना बाय सर्कमवेंटिंग द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का एंड द साउथ चाइना सी. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एक दफ़ा देखते हैं कि किस तरह से. अब इस स्लाइड में आप देखिए कि जो काशगर है, इट इज़ अ सिटी लोकेटिंग इन दैट प्रोविंस शिनजियांग. तो ये एक लैंड रूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है अंडर दिस प्रोजेक्ट सी पैक. और इसके ज़रिए से आप देखें कि जो गवादर तक असेस है वो लैंड रूट के ज़रिए से मुमकिन बनाई जाएगी. और यहाँ से फिर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ तक जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स गुड्स और सर्विसेज हैं वो डिलीवर की जा सकती हैं. तो फ़ायदा क्या होगा इसका, कि जो टाइम और कास्ट है, यानी जो इससे पहले का जो रूट है, पहले हम उसको देखते हैं तो फिर हम इन दोनों रूट्स को कंपेयर करते हैं. इस स्लाइड पे आप देखिए कि ये जो रेड कलर है चाइना, और इसके साथ आप पाकिस्तान को भी सामने रखिए और साउथ चाइना सी की लोकेशन भी आपको नज़र आ रही है, उसको भी देखिए कि इस वक्त जो प्रेजेंट रूट है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट है, उसके ज़रिए से चाइना जो ट्रेड कर रहा है, तकरीबन मोर देन 60% जो चाइना की ट्रेड है वो इसी रास्ते से होती है. तो ये जो सी रूट है, इस सी रूट को यूज़ करते हुए चाइना के जो रिसोर्सेज हैं और जो कास्ट है वो बहुत हाई होती है. लेकिन अगर जो BRI प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश कर लिया जाता है, उसमें चूँकि हमारा इस वीडियो में फोकस सी पैक पर है, तो आप इसको देखिए कि जो पाकिस्तान से एक येलो कलर की लाइन गुजर रही है और ऊपर आपको एक ट्रांसपोर्ट भी नज़र आ रही है, एक आपको ऐसी गाड़ी भी नज़र आ रही है गुज़रती हुई. तो ये बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट है, और इस शॉर्टेस्ट रूट की वजह से जो टाइम है, जो कास्ट है, वो बहुत कम होगी, और रदर इट इज़ अ मोर सिक्योर ट्रेड रूट एज़ कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट.
बाकी डिफरेंट जो येलो लाइंस हैं वो अदर जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं और जो डेवलपमेंट कॉरिडोर्स हैं वो उनको इंडिकेट करती हैं। तो क्या फ़ायदा होगा चाइना को? चाइना की जो कास्ट है और जो टाइम है वो दोनों कम हो जाएंगे, और चाइना की जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ज़्यादा सिक्योर वे से और ज़्यादा इजीली वो डिलीवर कर दी जाएंगी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे मिडल ईस्ट की बात की जा रही है, ईस्टर्न यूरोप की बात की जा रही है और अफ्रीका की बात की जा रही है। एक टर्म यूज़ हुई इस सी पैक में, और ये कहा गया कि जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको, चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2015 में साइन किया गया, तो ये कहा गया कि जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं दे वुड बी कंप्लीटेड अप टिल 2017, के 2017 तक उन अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म अर्ली हार्वेस्ट, के अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होती है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम इज़ द प्रिकर्सर टू ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर हम इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बोथ द ट्रेडिंग पार्टनर्स मे बी चाइना एंड पाकिस्तान। तो उनके दरमियान जो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है वो क्या करेगी, इट विल हेल्प द टू ट्रेडिंग कंट्रीज टू आइडेंटिफाई सर्टन प्रोडक्ट्स फॉर टैरिफ लिबरलाइजेशन, यानी जहाँ पे उनकी इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटीज़ या तो बिल्कुल कम कर दी जाएंगी या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी। और इस एक्चुअली यू में से कि इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से पहले ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है दो ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान, आर मोर देन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स। CPA के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका पर्पस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर एन इंडस्ट्रियल रिवाइवल इन एनी कंट्री। तकरीबन 32 प्रोजेक्ट्स थे जिनको हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स कहते हैं, और ऑलमोस्ट वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बहुत कम प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर अंडर प्रोग्रेस एंड सून दे वुड बी कंप्लीटेड। एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ इसी अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के मुताबिक, और उस एग्रीमेंट में दो तरह की टैरिफ कंसेशंस दी गई। एक क्या था कि टैरिफ लाइंस ऑन विच ज़ीरो टैरिफ विल बी अप्लाइड इमीडिएटली, यानी जो ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ और इसकी इफ़ेक्टिव डेट के साथ जो ही ये एग्रीमेंट पर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो सर्टन जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उन पे बिल्कुल किसी तरह की कोई कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई नहीं होगी, वो बिल्कुल टैरिफ फ्री होंगी। सेकेंड, टैरिफ लाइंस ऑन विच ड्यूटी विल बिकम ज़ीरो इन 3 ईयर्स, यानी नेक्स्ट जो 3 ईयर्स होंगे उनमें उनके ऊपर जो टैरिफ ड्यूटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जब टैरिफ कम हो जाता है या टैरिफ ख़त्म हो जाता है तो उन चीज़ों को उनकी मोबिलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाके जो सेल करने का काम है वो ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं अगर उनमें से टैरिफ को निकाल दिया जाए तो उनकी जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत कम होती है, और अगर टैरिफ नहीं होगा तो इट मीन्स के सम हो वो अपनी एक्चुअल प्राइस पर सेल की जाएंगी, और एक्चुअल प्राइस जो है वो रिलेटिवली लो प्राइस होगी, और उसका जो मार्केट है वो ज़्यादा बेहतर होगी, उसका जो कंज्यूमर या बायर होगा वो ज़्यादा तादाद में होगा। अगर हम बात करें सी पैक फेजेस की और इसके प्रोजेक्ट्स की, कि सी पैक की कितनी फेजेस हैं, तो देर आर 3 फेजेस। जो फर्स्ट फ़ेज़ है उसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, और जो फर्स्ट फ़ेज़ है ये 2015 से 2020 तक है। सेकंड फ़ेज़ में मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है। सी पैक जो है वो अपनी सेकंड फ़ेज़ में है, दैट इज़ स्ट्रेच्ड फ्रॉम 2021 टू 2025, एंड द लास्ट एंड द फाइनल phase is that would be started from 2026 एंड इट वुड बी कम्प्लीटेड इन 2030। तो यू में से कि ये तकरीबन 15 साल का प्रोजेक्ट है सी पैक, जो कि 2015 में शुरू हुआ और 2030 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट फेज़ थी जिसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया गया। तो फर्स्ट फेज़ में जो मेजर फोकस है वो दो चीज़ों पर रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनर्जी एंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स।
और इसके अंदर डिफरेंट जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे वो इनिशिएट किए गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए गए, कोल पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए गए, विंड पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए गए। और इसी तरह से जो सड़कें हैं, जो डिफरेंट जो एग्जिस्टिंग रोड्स थी उनकी मेंटेनेंस और न्यू रोड्स की कंस्ट्रक्शन, ये काम सारा फर्स्ट फेज़ में हुआ। फर्स्ट फेज़ के जो प्रोजेक्ट्स थे वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें अभी तक चल रहे हैं, बट दे आर नियर टू कंप्लीशन। अगर हम सेकंड फ़ेज़ की बात करें तो सेकंड फ़ेज़ के अंदर जो फोकस है वो एग्रीकल्चर और मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। और आपने देखा, आप सुनते भी होंगे न्यूज़ में कि सेकंड फ़ेज़ में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको डिज़ाइन किया जा रहा है ट्रेड प्रमोशन और जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको एक्सपेंड करने का, और टूरिज़्म सेक्टर को इंक्रीज़ करना और टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना, ये सारे प्लान सेकंड फेज़ के प्लान्स हैं। थर्ड फेज़ की अगर हम बात करें तो थर्ड फेज़ के जो प्लान्स हैं वो अभी तक अनरिवील नहीं हुए, दे आर स्टिल नॉट मच पब्लिक, इसलिए हम अभी उन पे एज सच कोई बात नहीं कर सकते हैं। नीचे मैंने कुछ लिखे हुए हैं प्रोजेक्ट्स लाइक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हाइड्रो, विंड, कोल एंड सोलर एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रेल रोड्स एंड मोटरवेज कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन ऑफ ईस्टर्न रूट। अभी हम अगले स्लाइड में बात करेंगे रूट्स की। जो ईस्टर्न रूट है वो एक्चुअली पंजाब और सिंध से गुज़र रहा है, विच वाज इंटेंडेड टू जॉइन कराची एंड लाहौर वाया मोटरवे। और सेकंड फेज़ की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और इसमें जो वेस्टर्न रूट कंप्लीशन है, जो कि ये कहा जा रहा है कि 2024 तक वेस्टर्न रूट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो रेलवे लाइन के ट्रैक्स हैं, तीन ट्रैक्स की बात हो रही है। ML1 की विच वुड कनेक्ट कराची टू पेशावर, ML2 दैट वुड कनेक्ट कोटरी टू अटक, ML3 फ्राम कोयटा टू DI खान। ड्राई पोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो गवादर पोर्ट है उसे एक ट्रांजिट ट्रेड रूट के तौर पर भी यूज़ किया जा सके। इसके अलावा भी रिसेंटली आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि इट वुड बी कंप्लीटेड इन 2026। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैनी अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं, दे आर द पार्ट ऑफ फेज़ टू। तो देयर आर थ्री फेजेस। फेज़ वन कंप्लीट हो चुकी है एंड एट दिस मोमेंट CPEC हैज़ बीन एंटर्ड इनटू फेज़ टू, और फेज़ टू जो है वो 2025 तक होपफुली कंप्लीट हो जाएगी। अगर रूट्स की बात की जाए तो रूट्स भी तीन हैं, एक है ईस्टर्न रूट और एक है वेस्टर्न रूट और एक है सेंट्रल रूट। ईस्टर्न रूट जैसे पहले हमने बात की कि इसके जो मेजर पार्ट है वो पंजाब और सिंध से गुज़र रहा है। अगर हम वेस्टर्न रूट की बात करें जो कि ओरिजिनल रूट है, तो इसका जो मेजर पार्ट है वो बलूचिस्तान और KP से गुज़र रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से। जो वेस्टर्न रूट है इसको ओरिजिनल रूट कहा जाता है और ये शॉर्टेस्ट रूट है। 2442 किलोमीटर इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, जबकि ईस्टर्न रूट की जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर होगी। तो लेकिन वेस्टर्न रूट जो है इसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो यू विल फाइंड के इट्स रिलेटिवली इनसिक्योर रूट, क्योंकि ये बलूचिस्तान और KP के उन इलाकों से गुज़र रहा है जो कि हिली एरियाज़ हैं और माउंटेनियस एरियाज़ हैं। जबकि ईस्टर्न रूट जो है अगरचे ये थोड़ा सा लंबा रूट है, लेकिन ये चूँकि इसमें बहुत सारे जो रोड्स हैं और जो कनेक्टिंग रोड्स हैं दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, और ये ऐसे रूट है जिसको ज़्यादा सिक्योर रूट कंसिडर किया जा रहा है। बहरहाल वेस्टर्न रूट पर काम शुरू हो चुका है जो कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें सेंट्रल रूट की तो अगरचे शुरू में सेंट्रल रूट को भी इनिशिएट किया गया, लेकिन एट दिस मोमेंट सेंट्रल रूट को डेफर कर दिया गया है और अभी इस पर काम नहीं हो रहा। करंट स्टेटस हम कुछ ना कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं। तो जो फेज़ वन प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव बीन कंप्लीटेड एंड नाउ CPEC हैज़ बीन एंटर्ड इनटू फेज़ टू दैट वुड बी एक्सपेक्टेडली कंप्लीटेड अंटिल 2025। फेज़ टू में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टूरिज़्म सेक्टर। 9 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं एक्चुअली उनको इनिशिएट किया गया, लेकिन
अगर हम बात करें अब इस वक्त प्रेजेंट पीरियड की, तो देयर नंबर इज़ नॉट 9, बल्कि उनका नंबर बढ़ चुका है। दे आर अबाउट 27 और 28 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स। और कुछ जो इस इकनॉमिक जोन्स हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, जैसे फैसलाबाद में जो फर्स्ट इकनॉमिक जोन है, दैट इकनॉमिक स्पेशल इकनॉमिक जोन हैज़ बिन कंप्लीटेड। इसमें से जो 8 इकनॉमिक जोन्स हैं वो केपी में है, एक्चुअली वो 7 ही हैं। एक जो इकनॉमिक जोन है वो जो अस्ट वाइल फाटा है, जो कि 25th अमेंडमेंट के बाद फाटा केपी में मर्ज हो चुका है, वहाँ पे है। 7 ही स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पंजाब में हैं, और 7 ही बलूचिस्तान में है, 3 सिंध में है, एक गिलगित बल्तिस्तान में है, एक इस्लामाबाद में है, और एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और इसमें हम क्या एड्रेस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि इज़ पाकिस्तान रेडी टू रीप द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ सी पैक। क्या बल्कि ये ऐसी न्यूज़ और ऐसी एक परसेप्शन मौजूद है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही एक नई शक्ल है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट में आई और ग्रेजुअली उन्होंने यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद उन्होंने अपना डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो पाकिस्तानी पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो पाकिस्तान के एंड पे क्या वीकनेसेस हैं, क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इन इकनॉमिक बेनिफिट्स को सी पैक के ज़रिए से जो हासिल होंगे, शायद वो उनको उस तरह से अचीव नहीं कर पाए। बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, देयर आर सर्टन वीकनेसेस विच कैन बी ओवरकम। उनको एनकाउंटर किया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है, एंड देन पाकिस्तान वुड बी इन अ पोजिशन टू रीप द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ सी पैक इन इट्स कम्प्लीट सेंस। तो वो क्या मेजर हर्डल्स हैं? 3 चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को टू गेट the benefits of CPEC. Number one, development of human capital, and number two, establishment of rural connectivity, and number three, to ensure a safe business environment. क्योंकि जब safe business environment होगा तो this safe business environment will attract foreign direct investment and tourists. अब हम इन तीनों जो इश्यूज़ हैं इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट, पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट रिक्वायर रीस्ट्रक्चरिंग टू इम्प्रूव लीगल फ्रेमवर्क। नंबर वन, पाकिस्तान को क्या काम करना है? पाकिस्तान को लीगल फ्रेमवर्क को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। नंबर टू, रूल ऑफ लॉ को इन इट्स रियल सेंस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एंड नंबर थ्री, political stability. Political stability is very much needed because political stability and economic growth, they both are interlinked with each other, and in case of political instability, economic growth cannot be achieved. So political stability is the prerequisite, it is the foremost condition to get the benefits of CPEC. Political stability would be critical to the success of any developmental project and accountability process. While political instability undermines growth processes, it creates investment uncertainties, discourages international investors, and demotivates tourists. बिकॉज़ अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, सिट-इन्स होंगे, धरने होंगे, और उन धरनों के अंदर वायलेंट एक्टिविटीज़ होंगी, तो जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इस एनवायरनमेंट को एक सेफ़ एनवायरनमेंट कंसिडर नहीं करेगा, और वो ऐसे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और ना ही ऐसा इनसिक्योर एनवायरनमेंट टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। सो Pakistan needs to design and to strengthen and to restructure its legal framework and to implement rule of law and to ensure political stability. अगरचे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एफ़र्ट्स कर रही है, डिफरेंट रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ भी रहा है, बट दीज रिफॉर्म्स आर नॉट एनफ, एंड पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, because these reforms may not produce the desired results until we have a stable political environment to promote government effectiveness. सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ लोकल रोड। जैसे पहले हमने बात की कि रूरल कनेक्टिविटी, अब रूरल कनेक्टिविटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सी पैक प्रोग्राम, and it is not in the agenda of CPEC projects. So the development of local roads and transport system should be the part of CPEC agenda, because without creating
local connectivity, the desired economic growth and employment would not be achieved. You all know कि पाकिस्तान की जो 70% population है, they are living in rural areas, so it is very necessary to develop local roads and transport system. और इसके लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड एक्टिवली प्लान एंड डेवलप लोकल रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. थर्ड, ह्यूमन कैपिटल. क्या है ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल वी पीपल आर. लेकिन जिस तरह से हम लोग मौजूद हैं, क्या इसी तरह से ही हम ह्यूमन कैपिटल हैं? तो आंसर इज़ नो. सो पाकिस्तान नीड्स टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग. क्योंकि अगर हम सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करेंगे, टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करेंगे, तो इट वुड नॉट बी एनफ. और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ की जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन और टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है. इसलिए गवर्नमेंट शुड डिज़ाइन एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्सेज टू कैटर टू लोकल नीड्स. और इसके लिए एक असेसमेंट स्टडी कंडक्ट की जा सकती है, ताकि जो लोकल नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए, और जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके मुताबिक जो लोकल्स हैं उनको टेक्निकली और प्रोफेशनली ट्रेन किया जा सके. Because though we have and we are giving basic education to our youth, but we lack the professionalism. और जब तक प्रोफेशनलिज्म हम हासिल नहीं करेंगे, वी वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज एफिशिएंटली. और इस वक्त गुड्स और सर्विसेज, इन दो चीज़ों को अगर हम इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमें ह्यूमन कैपिटल पे काम करना पड़ेगा. क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगा, तो ह्यूमन कैपिटल कहीं और से आएगा, और फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो वही लोग सारे एक्सट्रैक्ट करेंगे. इसलिए in addition to the amount of education, it is necessary to focus the quality of education, so that professionals could be produced in all the sectors. Uh, in the last, I need to say that without implementation of an integrated institutional framework, establishment of a local road and transport network, or developing area specific human capital, the fruits of CPEC may never materialize. That was all about CPEC. CPEC क्या है? It is one among the projects of BRI. What is BRI? Belt Road Initiative, that was introduced by Chinese leadership in 2013, and Pakistan and China signed this agreement in 2015 when PMLN was the ruling political party of Pakistan. And at the time of signing in 2015, this project was equivalent to the $46 billion worth. लेकिन अगर हम प्रेजेंटली बात करें, तो इसकी जो वर्थ है वो $100 बिलियन से एक्सीड कर चुकी है. नेक्स्ट हमने इसकी फेजेस की बात की, तो देयर आर 3 फेजेस. फर्स्ट जो फेज़ है उसमें शॉर्ट टर्म प्लान है, सेकंड में मीडियम टर्म प्लान है, और थर्ड फेज़ में लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं. फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुकी है. एट दिस मोमेंट सी पैक इज़ इन फेज़ 2, जो कि 25 में कंप्लीट हो जाएगी, और जो थर्ड फेज़ है वो 26 से 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी. As far as the routes of CPEC are concerned, there are 3 major routes. One is called Eastern route, other is called Western route, and the third is called Central route. इनको Western alignment, Eastern alignment और Central alignment भी कहते हैं. जो Eastern route है उसका मेजर पार्ट कहाँ से गुजर रहा है? पंजाब और केपी से, पंजाब और सिंध से. जबकि वेस्टर्न जो रूट है उसका मेजर पोर्शन बलूचिस्तान और केपी से गुज़र रहा है. जो वेस्टर्न रूट है, इट इज़ द ओरिजिनल रूट, और ये शॉर्टेस्ट रूट है जिसकी 2442 किलोमीटर लंबाई है. जबकि अगर हम ईस्टर्न रूट की बात करें, जो कि रिलेटिवली इट इज़ मोर सेफर रूट, और ये 3000 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है. अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंट स्टेटस की, तो प्रेजेंट स्टेटस भी हम डिस्कस कर चुके हैं. और जो सेकंड फेज़ है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें हो रही है, जिसमें टूरिज़म सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें ट्रेड को किस तरह से एनहेंस करना है, एक्सेलरेट करना है, इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है. और लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान को किन लाइंस पे काम करने की ज़रूरत है to get the true benefits and to get the full benefit of CPEC project.
In case of any confusion, in case of any query, please post your queries in the comment section. I will definitely answer. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.